Namaskar. We would like to welcome you all on our 1137th webinar on health coverage insurance for AYUSH. I would like to welcome Dr. Mandar Ranade ji from Pune and Dr. Ritesh Shah ji from Indore. Both are expert of the subject and they really guided us in our last webinar on AYUSH insurance, and today is health coverage day. So we would like to listen from our speaker, Dr. Mandar Ranade ji और डॉक्टर रितेश शाह जी. मैं दोनों का स्वागत करता हूं. डॉक्टर रानाडे जी. Am I audible, Dr. Ranade? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to you? Yes, clear. Okay. But not visible. You are not visible. Yes, in 225. Who is going to speak first, me or Ritesh ji? Whatever you want. Both of you are expert for us. No, if I request Ritesh ji to start first, because in 5 minutes I will start my video. I am at Okay. place. Yeah. रितेश जी नमस्कार. रितेश शाह जी. रितेश जी, you are mute. Insurance coverage is the problem. Yes, Ritesh Shah ji is joining from other. So in preamble, I would like to communicate. Welcome, Ritesh ji, welcome. So sorry, I was disconnected due to some internet issue. No problem. So should I start speaking, Yes. Dr. Ranade? Yes, welcome. Okay, sir. First of all, thank you very much, sir. Again, we are connecting through this web series, and it's a great platform to share our ideas and to discuss in our mutual fraternity of AYUSH. It's really a great thing, and we connect from every distance of the world, globally also and nationally also, and to exchange our thought, and definitely it will give a great platform of learning to each others. With all due respect to all seniors and our colleague fraternity, I'm Dr. Ritesh Shah, belongs to Indore. I'm working in healthcare administration since quite long time, and day to day I'm dealing with all insurance, cashless, mediclaim, reimbursement kind of activities in various hospital activities in my past career and at present also. So सर ने मुझे आज कॉल किया है कि आज नेशनल कवरेज डे है, सो उस पे हम वापस जुड़ते हैं, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक बार वापस जुड़ने का मौका मिलेगा. सो लेट्स begin with the topic and cut short the discussion in short time. As we spoke, पहले भी हमने बात करी है कि आयुष पद्धति, आयुष विद्या चिकित्सा, समस्त जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, योगा है, सिद्धा है, are they are covered under insurance medical policy or not? First of all, the question, and the answer is yes. Now the norms and the laws are getting refined day by day, especially by the intervention of Ministry of Family Health and Welfare, plus our AYUSH department of ministry. So lot many insurance companies, either private, either in government sector, they are changing their norms, and they are providing good cashless as well as a reimbursement facility to the AYUSH treated patient. Even a patient can claim conjointly for modern medicine treatment plus our AYUSH treatment for their insurance company, and they will get a benefit, financial benefit. But they have to take care of definitely their inclusions and exclusions criteria very strongly. There are certain norms which has been covered under insurance policy, and there are certain norms which is not covered under insurance policy. And financial capping limit is also a very key role in that particular claim of cashless or reimbursement. That is a thing we have to keep in mind. So अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर कुछ बताना चाहूँ कि अगर आप एक हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं, आइदर कैशलेस में या रिएम्बर्समेंट कैटेगरी में, सो देयर आर अराउंड 3000 प्लस प्रोडक्ट लिस्ट
which IRD, Insurance Regulatory Development Authority of India, had issued to all the insurance companies. So the product cover their cashless or reimbursement category. Same principle applies to our department also, and the list is very exhaustive. But being a clinician, being a healthcare provider, we have to be very meticulous while using those kind of product, or before doing the treatment we have to explain to our patient with due respect that these are been covered and these are been not covered. Probably this is not a work of clinician, but a coordinator who's take care of insurance policy in the hospital or your clinic or your setup, so it will help. So that is very important. We have to take care of that particular thing. Another important thing is that if I move to a broader spectrum, which are the insurance companies giving coverage to Ayush treatment? So all the insurance company who are working in India, they are providing a cashless treatment under their guidance and their domain. Especially, I talk about a government insurance company, National Insurance, United, Oriental. All these are the PSUs, government PSU, and they provide cashless to their all the patient from the day one of their policy issuance. But certain policies have a different kind of limitations. Either they cover like from 2,500 to 50,000 of financial capping they are providing in their cashless treatment or reimbursement kind of treatment. For specially cashless patient, the Institute of Ayush has to be recognized, has to be affiliated from that particular insurance company, or either private or either government agency, or maybe through their TPS. Then and then only they will get a cashless facility. For reimbursement, as such, there is no criteria. Maybe the institute may register or entitled with their insurance company, or the patient can file their reimbursement case directly as like an allopathic mode of treatment they are doing in their respective insurance company or TPA companies. But I will say in nutshell, the norms are becoming better, good in favor of patient, in favor of clinician to cover as much as possible for Ayush treatment. Even recently, I got an update that they are covering all the daycare facility kind of treatment in various stream of Ayush, along with modern medicine. So that is another good news. If everyone is applying that and giving benefit to the patient, then that's a really a great news for all the patients of Ayush and the clinicians. And further, we have to work a lot. It's not a limit that today out we are getting. So this is because there are lot many things in insurance company which as a Ayush person I see these are missing, and these are the need of a modern day treatment along with the Ayush treatment for our patients. So we all have to raise a bar along with a proper voice wherever we are facing the challenges, and those doctors or the clinicians are on grounded and they are the right person to brief the challenging points what they are facing, because they actually see the problems what their patients and they're facing in insurance. So if this kind of forum can help all these physicians to enlighten the challenging points, so at least we can, as a group of Ayush, we can recommend certain changes or certain norms to be as a part of our policy for upcoming days for the Ayush treatment under insurance and Mediclaim policy. So these are the nutshell point I want to highlight from my side. ये बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छे फ्लो में बोले. ग्रेट कंटेंट एंड एक्सीलेंट ऑरेटर, नो डाउट. मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं आपसे सरल हिंदी में अपने यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आयुष के लिए अपने को रियम्बर्स करती हैं? सर आप अगर हिंदुस्तान में अगर इंश्योरेंस सेक्टर को अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रमली देखें, सो अराउंड देयर आर, मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ अपने डॉक्टर्स फैटर्निटी के लिए. इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, देयर आर टू डिफरेंट थिंग. कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जो खुद से अपना इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस जो है वो सेटल डाउन करती है. कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर के थ्रू ये सारी प्रोसेस को सेटल डाउन करती है. तो इसको हम बोलते हैं टीपीएस. तो अराउंड 40 प्लस अराउंड 50 के
50 के आसपास में इंश्योरेंस कंपनी एंड टीपीएस ब्रॉड स्पेक्ट्रमली इंडिया के अंदर काम करते हैं, जिनका एक लेवल का अच्छा खासा वॉल्यूम है, बिजनेस है, जो पॉलिसी मार्केट के अंदर फ्लोट करते हैं। इंश्योरेंस होंगे जो कि निग्लिजिबल नंबर्स में, बट पैन इंडिया की अगर हम बात करें तो मोर देन 40 कंपनीज और टीपीएस है जो इस मार्केट के अंदर काम कर रही है। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इस पूरे पोर्टफोलियो के अंदर आयुष ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। वो बाध्य है आयुष का ट्रीटमेंट को अप्रूवल देने के लिए। प्रॉब्लम है अनअवेयरनेस ऑफ आयुष ट्रीटमेंट अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी टू द क्लाइंट, टू द पेशेंट, अनअवेयरनेस टू द फिजिशियन कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। द प्रॉब्लम इज दैट लोग क्लेम ही नहीं करते, या क्लेम करते हैं तो कोई तरीका या फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन या कोई प्रोसेस वो जैसे उनका क्लेम आए या तो पार्शियल में चला जाता है या फिर सारे डिसीजंस उसमें आ जाते हैं। आपकी आवाज बंद हो गई। एम आई ऑडिबल मंदार जी? को सेटल डाउन करना पड़ेगा। बाकी सारी मोरलेस इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आयुष ट्रीटमेंट को कैशलेस और रिएम्बर्समेंट दोनों करती है। अच्छा अच्छा। और ये मीन्स डे केयर में भी ये इंश्योरेंस अवेलेबल है? सर अभी मुझे कुछ न्यूज लगी है कि कुछ चीजों में स्पेसिफिक डे केयर सेगमेंट उन्होंने कवर करना चालू करा है। आई एम नॉट श्योर विथ माय डेटा कि how many companies are exactly providing the daycare facility, but I'm sure कि they are providing. ग्रेट। मैं डॉक्टर हरीश वर्मा को आमंत्रित करता हूँ, उनका कुछ क्वेश्चन था आपसे। जी जी रमेश जी, नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, डॉक्टर हरीश वर्मा। जी तो सर। यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस लेनी मैंडेटरी होती है, जी प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। यस क्या यस वो यस इंडिया में भी अवेलेबल है आजकल? सर इंडेमनिटी लाइबिलिटी, मैं चूंकि हॉस्पिटल बैकग्राउंड से हूँ, सो मैं पहले एलोपैथी शुरू करता हूँ। अगर मैं किसी भी कंसल्टेंट को हायर करता हूँ मेरे हॉस्पिटल के लिए या मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ, सो हमारा फर्स्ट लाइन होता है कि आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की, डिपेंड्स ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ द डॉक्टर, आपको इंडेमनिटी पॉलिसी होना चाहिए, मैंडेटरी है। जी और हर बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आजकल इंडेमनिटी पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल क्लिनिशियन इज मैंडेटरी। एंड इवन आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म एंड टेल माय ऑल क्लिनिशियन फेलोज, क्योंकि आप डे टू डे पेशेंट से डायरेक्ट ट्रीटमेंट अलाइनमेंट में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मिसहैपनिंग कभी भी किसी के साथ किसी भी लेवल की हो सकती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो देखें कि आप कितना रेम्यूनरेशन जो है वो जनरेट करते हैं। एटलीस्ट उसका आई विल सजेस्ट कि आप उसका 5x या 10x का इंडेमनिटी पॉलिसी अपने लिए खुद के लिए लेके रखें। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडेमनिटी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत नॉमिनल है हिंदुस्तान के अंदर। इट इज द लेसर इन एंटायर वर्ल्ड अगर आप कंपेयर करेंगे डेटा। सो इंडेमनिटी पॉलिसी बहुत सस्ती है, इवन इंश्योरेंस मेडिक्लेम से भी सस्ती है। सो एज ए डॉक्टर तो होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये फैसिलिटी आयुष डॉक्टर्स को भी अवेलेबल है? सर इंडेमनिटी पॉलिसी कोई भी डॉक्टर ले सकता है। वहां पर जब पॉलिसी आपको इशू की जाती है अपने इंडियन आईआरडीए के गाइडलाइन के अंदर, सो इंडेमनिटी पॉलिसी कंपनी आयुष डॉक्टर, नॉन आयुष डॉक्टर नहीं, आप अगर एज ए डॉक्टर हो आपकी वो डिटेल लेते हो और आपको पॉलिसी इशू कर देंगे सर वो। कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जिन्होंने पॉलिसी यूज करी ली है सर, है उनके पास। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं? या ठीक है, होम्योपैथिक थैंक डॉक्टर्स है सर। यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी जी थैंक यू पवन और जी, थैंक यू। अच्छा हुआ सर आपने ये क्वेश्चन पूछा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, एंड कभी भी इसका डिस्कशन अभी तक पुराने वेबिनार्स में भी नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो ये पॉलिसी जो होती है एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस, तो ये क्या क्या कवर करती है? सर आपका सारा थर्ड पार्टी रिस्क कवर कर लेती है। कभी भी कोई कंज्यूमर फोरम के अंदर कोई केस अगर जाता है एंड कंज्यूमर फोरम अगर डॉक्टर के अगेंस्ट में अगर आपका जजमेंट आता है कि कोई निग्लिजेंस है या पार्शियल निग्लिजेंस है या एनी काइंड ऑफ लाइक कॉम्पनसेशन क्लेम अगर होता है, तो डॉक्टर को अपने जेब से ना भर करके इंश्योरेंस कंपनी विल कवर ऑल दिस थिंग, एंड इवन दे हेल्प फॉर legal support or the legal guidance from their side also. हाँ, तो पवन जी, मैं चैट में डालता हूँ, एक वेबसाइट है जिसमें एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस के बारे में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जान सकते हैं।
इसमें नेग्लिजेंस कवर होती है, ओमिशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, वायोलेशन ऑफ गुड फेथ, इनएक्यूरेट एडवाइस, ये सारा कवर होता है। और ये यहाँ पर कनाडा में और यूएस में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है। तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन चैट में डाल देता हूँ। इट मे बी यूजफुल फॉर अवर व्यूअर्स। थैंक यू सर। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू वेरी मच, एंड Thank you, थैंक यू रितेश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपने बोला। मैं अपने अग्रिम वक्ता डॉक्टर मंदार राणाडे जी को सादर आमंत्रित करता। डॉक्टर मंदार जी, आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल। Yes, I am very much comfortable. Now I'm taking my vehicle on the roadside. Now I'll be speaking from there. ग्रेट So ग्रेट ग्रेट। thank you very much for this great effort you are taking relentlessly. You are having this webinar on different topics. Some I can join, some I cannot, but I see the topics and really I'm overwhelmed. And this is the third year when I am associated on this National Health Sector Insurance Day. So I'm very much privileged that you have called me on this occasion. वेलकम। I have some points to say, but before that, I will elaborate the answer given by Ritesh ji. I have some one points to add about one question asked by eminent speaker from Canada. So can I add some points on that? श्योर श्योर, Yes, प्लेटफॉर्म yes, इज Yes, ऑल you ऑफ योर्स, can yes, प्लेटफॉर्म इज योर्स। add yes, your yes, experience. It will help for yes, everyone. yes, yes. Now the situation is, Ritesh sir said that the indemnity policy is for all doctors and everyone can avail it. But issue comes when they give the liability, means they stand by you when some unfortunate incidents of medical legal event happens. And that time the insurance is well known for rejecting and not providing you the services. And that time the game starts. So now in India, there is a plurality of legal situation. In some states, the allopathy practice is allowed for our Indian system of medicine doctors, and in some state it is not. So whenever this practice is not allowed, and if our doctor performs some allopathy, prescribe some allopathy drugs, or even by asking some consultant, having consultant in his hospital, treats typhoid or treats something, then these companies have sometimes rejected their claims. Based on that, the cross pathy is not allowed, so and so. So we actually talked with Oriental Insurance. I don't have any conflict of interest with Oriental Insurance. I don't want to promote them. I am not at all on their panel. But we discussed with Oriental some years before, and in state of Maharashtra, we have statutory practice of modern scientific system of medicine by ISM doctors, and we drafted a medical. So we drafted a indemnity policy where the graduates can perform this practice and they are indemnified if there is any if there is any medical legal event. And postgraduate also, to extent of their knowledge and to extent of their statutory provisions, they are also allowed to they are also indemnified in such case of such events. So people who have taken this policy, they have benefited, and we have taken a due care that these particular statutory provisions are written on the insurance policy. Because what is written, insurance is a contract. So what is written on the policy is only executed. So whenever these things are not there, sometimes they reject the policies. So make it a point that if you are specialist, ISM doctor, and you are performing something, then you should make it a point that all these points should be mentioned on the policy. If you are doing a roaming practice and visiting different places and different hospitals, you should take care to mention those number of the hospitals on your policy. Because if some hospital is more than that, apart from that list, it is okay. But by and large, if the hospitals are included or the panchakarma centers are included, then you get the benefit of that. Because insurance companies are, as I already said, they are on the verge of rejecting your claims and not for accepting. Their business is not for accepting your claims and provide you services. So the next thing is that there are some companies who have come forward
who, along with the conventional insurance policy, they provide you assistance from the legal aspect also. They provide you the facility of the advocate. Conventional policies were only providing you the assistance in the Consumer Protection Act. But now these policies have come with, they also provide you services for IPC, Indian Penal Code, criminal negligence, or other also, like some third party errors, like your nurse commits some mistakes, your receptionist commits some mistakes. All those errors are also covered. So entirely such negligence cases are also covered. So one Ayurvedic practitioner who is performing Ayurvedic practice or doing a practice in the other sector, they are actually needed to indemnify in the world, in the era of medical legal suits rising and assaults on the doctors rising. Doctors are nowhere now a noble profession. It's a give and take relationship. It's a consumer and service provider relationship. So we must cater to that. So such provisions are available in India, and we must take benefit of that. I will conclude the answer of the question first by saying that there was an Oriental insurance company. Similarly, one more company actually rejected a claim of one ISM doctor, one patient who actually took treatment from ISM doctor's hospital, and he was treated for typhoid, and his claim was rejected, saying on that you are not registered practitioner, so and so. So we fought the case to Consumer Forum, and then we dragged the company to the Consumer Forum, and the Consumer Forum directed that you cannot deny a claim based on this particular services provided by ISM doctors. They are well registered practitioners in the state of Maharashtra or wherever in which states they are registered as a registered medical practitioner. So based on that, this claim cannot be rejected. I have a judgment copy. I can share it to the webinar organizers, and you can avail that, because based on that, at various places we went to ombudsman and we fought. Even in my case, when I did ectopic pregnancy late at night, that case was rejected based on that I am a ISM postgraduate. This similar judgment was cited to the ombudsman, and ombudsman actually gave justice in our favor. But in this situation, only the patient and patient relatives have to be on your side. They have to have faith in your side, because it is a insurance is a contract between your patient and the insurance company. You are not there as a stakeholder. So it is them to fight with the ombudsman or other agency or the courts, and they can get a justice, and your image is prevented. So having said that, now I will come to my point of today's discussion. Mr. Dheeraj has also, Mr. Ritesh has also clarified on that. That before 2 years, there was a meeting in Tiruvananthapuram about all the stakeholders along with IRDA. And Ayush Ministry, especially Dr. Kotecha, played a vital role in persuading all these companies to provide medical health insurance to the citizens about Ayush treatments. And practically, all these companies have come forward, and they are now providing care. OPD level care is provided by all. Indoor level is provided by many companies. For corporate sector, every company is providing, because their IT people, their corporate people, they take insurance in the big chunks. And if some company denies Ayush treatment, then definitely they are going not to be renewing that particular company's insurance. That fear is there. Therefore, this corporate sector insurances are now entertaining these Ayush treatments along with IPD level also. The difference is only between the sum assured. Sometimes it is, if your total insurance is 15 lakhs, then only 20% or 25% will be there for your Ayush treatment, like that. This discrimination is there. But this door had just opened, so we can take the further steps. And in some individual individual insurances, the Ayush treatment cap is there.
only up to 3 lakhs, only up to 5 lakhs, they can be given. So this now also we need to represent to the Ayush Ministry or PMO, and we can rectify these things also. One more thing is, recently there was a Madras High Court judgment, which I want to point out on this auspicious day, that there was a patient who actually took Ayush treatment during COVID times, because he was not getting relief by the conventional modern science treatment, and he took Ayush treatment in a reputed Ayush hospital, and they had some expenditure of 50,000 plus. When the insurance company gave this particular claim, they said that we can only partly cover the insurance, and they paid only 19,000. For that purpose, they went to Madras High Court, and after 2 years of fight, the Madras High Court has passed a judgment, unanimous judgment they have passed, that you cannot discriminate between the Ayush and the allopathy treatment. If that is sum assured is within that limit and 50,000 expenditure is there, you cannot give only part sum to the Ayush treatment. You cannot discriminate between that. They have clarified that it's an Indian system, it's a recognized Indian system. We are basically Indians, so such type of discrimination or step brotherly treatment should not be given to our Indian system of medicine. We welcome this judgment because this has got multifold dimensions, and we will highlight or exhibit this judgment at various places where such discrimination is happening. And it's really a welcome judgment by the Supreme Court, by the Madras High Court. And definitely, wherever other discriminations are going on by this IRDA or the so-called TPA or the insurance companies, we can also raise our issues, and definitely we can get the result. Now, lastly, after this COVID incidents, the insurance companies have started rejecting or reducing or applying cut to the bills. I'm seeing whether genuine operations are being also conducted, and they have rejecting lot of things based on administrative expenses or something like that. So for that purpose also, we must be also vigilant. We should tell our patient that you look forward what is excluded, what is not, and definitely we can avail those facilities, because the insurance companies are really collapsed. Their budgets are collapsed during COVID times by paying the bills of the hospital bills of the patient, and now they are doing this as a side effect to our doctors. Many times they are seeing who is the pathologist, who has signed it, who is the doctor working, and they are going into details. And our own BMS doctors or BHMS doctors are working on their panels. They are visiting the hospitals, they are visiting even the homes of the patient, seeing the incisions, if really operation is done or not. Means there is a flip side to that also. Some people have done malpractices, because of that things are happening, I accept. But due to the COVID burden, these companies are cited like that. So genuine claims also been affected. So we must be, as a stakeholders, we must put forward all these things to the government. So ultimately, I congratulate the webinar organizers for holding this important subject on the National Health Sector Insurance Day, and I hope forward to contribute in such auspicious webinars henceforth also. If they give me some medical talks also, I'm happy, because every time I'm talking on the legal things. So if you I arrange will some medical definitely, also, I will definitely be happy. Thank you very much for the organizer. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. मैं जरूर आपको आमंत्रित करूंगा. मैं आपसे कल ही फोन पे बात करता हूं आपके पसंद के टॉपिक्स के लिए. और वैसे मैं हर महीने अपना शेड्यूल भेजता हूं. प्लीज सिलेक्ट एनी टॉपिक एंड कम्युनिकेट. यू आर ऑलवेज वेलकम. दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स. हरीश वर्मा जी हैं तो, डॉक्टर हरीश वर्मा जी. जी सर, जी सर. ये देखिए, ये व्हाट्सएप पे आजकल पब्लिसिटी कर रहा है हमारे इंडिया में. ये व्हाट्सएप पे पब्लिसिटी कर रहा है कवर यू. ये इंडेमनिटी भी करता है, हॉस्पिटल भी करता है इंश्योरेंस, और ये डॉक्टर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्ट एट 299. Why doctor choose? These are the
आई एम नॉट हिज ब्रोकर नो डाउट, लेकिन फिर भी इतनी सारी ये रजिस्टर्ड IRDAI ब्रोकर, ओनली डेडिकेटेड ब्रोकर, 500 मेडिकल लीगल लॉयर्स, मतलब ये तो सब हाइलाइट्स है। 200 प्लस सीनियर डॉक्टर पैनल यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्री लीगल कंसल्टेंसी। इसके बेनिफिट्स में ये बोलता है रेट है 299 रुपीज पर मंथ आई होप, नहीं तो इतना सस्ता तो नहीं हो सकता। स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमाइज्ड तो कवरेज, नो मेंबरशिप और लीगल फीस, 360 डिग्री लीगल प्रोटेक्शन, 360 डिग्री instant policy issuance, 24/7 2 hour lawyer allocation, access to pan India medical legal lawyer panel। ये सब, ये अब आप ही बताएं कि ये सब ये धोखेबाज कंपनियां हैं और या ये सब कंपनियां वाकई में सही है। ये नहीं, मेरा इसमें इसमें डॉक्टर पवन जी, इसमें डॉक्टर रानाडे ने एक पॉइंट बताया है कि इंश्योरेंस कंपनीज जनरली इस तरह का चाहती हैं कि वो जनरली क्लेम को अवॉइड करते हैं, क्लेम देना नहीं चाहते। तो ये जो अभी आपने दिखाया है ये लेने के लिए है। जब ठीक क्लेम बोले, देने की, ठीक बोले, जब, है नहीं, ठीक बोले। हाँ, जब जब क्लेम देने की बात आएगी तो वो फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इट्स इलीगल, यू कैनॉट यूज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यू कैनॉट यूज एलोपैथिक ड्रग्स, यू कैनॉट यूज ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, आपने हैवी मेटल लिया, वो लिया। तो वो सारा अभी ये एरिया में इंश्योरेंस के जो प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस है आयुष डॉक्टर्स की, इसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। तो पवन जी, इस कार्यक्रम को भी आप अपनी लिस्ट में डाल लें। और जरूर, इंडेमनिटी पे क्योंकि हम आगे ही करना क्यों- चाहते हैं आपकी लीडरशिप में। बताइए कहाँ कहाँ क्योंकि से लोग। नहीं, जैसे डॉक्टर रानाडे ने बताया ना कि इट्स बेसिकली इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यस, इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ इसमें जी, हमें हमें इसमें स्कोप ऑफ प्रैक्टिस डिफाइन करना पड़ेगा कि आयुष डॉक्टर जो है उनका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है, क्या क्या वो दे सकते हैं। अगर एलोपैथिक मेडिसिन उनके सिस्टम में अलाउड नहीं है, तो अगर वो देते हैं उससे कोई नुकसान होता है, उसकी कवरेज वो नहीं करेंगे। हाँ। तो तो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर काम करना जरूरी है। तो आप कब चाहते हैं वेबिनार होना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है, बहुत नया ही एरिया है जी और जी डॉक्टर पिटने से भी बचेगा और लुटने से भी बचेगा, जी जी जी। वो जो दोनों ही बातें हैं। उनका जो, हाँ, जो आपने वेबसाइट दिखाई है वो क्लेम पे आके अटक जाएंगे। कवर यू। रितेश जी, जी आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर मंदार ने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया, हरीश सर ने भी उसका बहुत वैलिड रिप्लाई किया। एक्चुअली सर, मैं थोड़ा सा एक दूसरा एंगल और दिखाना चाहता हूँ। सर, कितने परसेंट लोग हैं जो अपनी पॉलिसी का पूरा डिटेल पढ़ते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल फैक्ट। लिमिट अवे हम आयुष को कवर करने की बात करें, पेशेंट को कवर करने की बात करें, या आयुष डॉक्टर के इंडेमनिटी की बात करें, इंश्योरेंस पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन का पेपर कितने लोगों ने पढ़ा होता है? कोई भी नहीं पढ़ता सर। वो एक कार्ड ले दिखाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा, उनको तो बेचना है, सर ने जो बताया वो सही है। सर, बेचने के टाइम तो वो यही बोलेगा कि ये भी कवर है, वो भी कवर है। जब आप एक्चुअल में उसका यूज करने जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितना उसका वैल्यू एडिशन आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर कि हमको हमारे एज ए क्लिनिशियन हमको हमारा स्कोप ऑफ सर्विस मालूम होना बहुत जरूरी है। हमारे डूज एंड डोंट्स, हमारी लिमिटेशन लाइंस मालूम होना चाहिए। हम ट्रीटमेंट करने में ऐसा कोई लाइन क्रॉस ना कर जाए जो जिसके लिए हम अनधिकृत है और हम उसके लिए क्लेम करने जाएंगे तो डेफिनेटली वो क्लेम कभी मिलना नहीं है हमको। और श्योर, इंश्योरेंस इंश्योरेंस बड़ी पोजीशन पे आपको आयुष डॉक्टर्स मिलेंगे। आइदर वो आयुर्वेद डॉक्टर्स हो, आइदर वो होम्योपैथ डॉक्टर्स हो। वो पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और क्लेम सेटलमेंट में भी बहुत वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और क्लेम क्रॉस चेकिंग में भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं सर। तो क्योंकि उनका वो उनको बिठाया उसलिए कि आप तो बस कट करो इसको। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, इंश्योरेंस कंपनी में ओरल कुछ नहीं चलता है। जो कागज पे लिखा है वो मान्य होगा। आप चाहे इंश्योरेंस के क्लेम की बात करें या आप ट्रीटमेंट की बात करें, जो प्रॉपर वे में आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसको हम मेडिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं पेशेंट के, चाहे वो आईपीडी के हो या ओपीडी के हो,
दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एक आप जैसे मकान की एक रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको एक चेन ऑफ रजिस्ट्री होती है, वैसे एक चेन ऑफ ट्रीटमेंट होता है सर। वो जब तक आप उसको नहीं दोगे और अगर उस चेन ऑफ ट्रीटमेंट में कहीं भी ब्रीच मिलेगा तो वो क्लेम 100% रिजेक्शन की तरफ जाने की गुंजाइश रहेगी उसके अंदर। जी। तो यहाँ इन चीजों पर का डॉक्टर रितेश जी, वेस्ट में, कनाडा में, यूएस में, यूरोप में, इंग्लैंड में, यहाँ स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते हैं। हर जी डिपार्टमेंट का, हर सेक्टर में स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है। इवन जो सर्जरी वाले डॉक्टर हैं वो सर्जरी वही कर सकते हैं। बिल्कुल सर। वो सर्जरी की भी आगे उन्होंने स्कोप बताया हुआ कि आप किस किस लेवल की सर्जरी कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही। ऐसे ही मतलब जो नेचुरोपैथ है उनका भी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है। इवन मसाज थेरेपिस्ट, हम्म। यहाँ पर कनाडा में रजिस्टर्ड मसाज थेरेपी एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है। और हम लोगों ने कुछ मसाज थेरेपिस्ट को शिरोधारा ट्रीटमेंट के लिए ट्रेन किया। उनको बताया कि आप हेड मसाज करते हो तो उसी तरीके से आप शिरोधारा को अपने इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी बिलिंग की, इंश्योरेंस कंपनी से ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दे सेड कि आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में शिरोधारा कहीं मेंशन ही नहीं है। निश्चय नहीं। तो उसी तरीके से स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है, आयुष डॉक्टर्स का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तभी इंश्योरेंस जो है, लायबिलिटी इंश्योरेंस या एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस कामयाब हो पाएगी। सही बात है। और सर एक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेंट नाम की एक बहुत चीज जरूरी होती है। हम जी उसको डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत कारगर तरीके से उपयोगी ढंग से यूज नहीं करते हैं जी क्लिनिशियन कई बार फ्लो के अंदर। साइंस का लॉ कहता है कि आप अगर किसी भी बॉडी को टच करते हो, मतलब आपके पेशेंट की, आपको उसकी परमिशन लेनी है, टच करने की भी परमिशन लेनी है, तो प्रोसीजर की तो बहुत दूर की बात है। जी So, ये लीगल कंसेंट्स बहुत रोल प्ले करती है जो हम डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर छोड़ जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इंडेमनिटी के अंदर, जब आप इंडेमनिटी क्लेम करने जाते हैं, वहां पर डिस्प्यूटेड मैटर्स के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इधर जी आपने कंसेंट लेनी है, पेशेंट, जो डॉक्टर मंदार ने बोला कि पेशेंट हैज टू बी ऑन योर साइड। आप जब फाइट करने जाओगे, अगर पेशेंट कोर्ट में जाके बोल देगा नहीं मेरे से तो डॉक्टर ने पूछा ही नहीं था करने के पहले, तो ये क्लेम अगेन फिर वही रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा। जी जी जी। सो बेसिकली जो लायबिलिटी इंश्योरेंस है, बिना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के नहीं ये आएगी। इसका फ्रेमिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहूंगा कि पवन जी इस मुद्दे को गवर्नमेंट लेवल पे उठाएं इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत नया फील्ड है। बिल्कुल थैंक यू ठीक सर। कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। इस विषय पे और किसी के कोई कमेंट? एक रेडमी के नाम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा बोले हरीश जी। मैं इस टॉपिक पे ही आप तीनों के साथ एक वेबिनार रखना चाहता हूँ, थैंक यू सर। डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन। जी जी जी। आप मैं डेट लेके आप तीनों से और एक वेबिनार जल्दी 2-3 दिन में करें, और वो स्टेप बाय स्टेप पीपीटी के साथ यदि करें तो कृपा होगी, जिससे लोग समझ जाए। पीपीटी नहीं हो तो इंटरनेट में जो अपनी वेबसाइट्स हैं वही यदि अपन दिखा के लोगों को गाइड कर दें तो बहुत कृपा होगी। ये जी मैं सर। हरीश जी का भी फोटो ऐड कर दिया हूँ। बहुत बहुत आभार। हमें और कोई कमेंट देना चाहते हैं इंश्योरेंस पे? 4 कॉलेजों के प्रिंसिपल रहे आदरणीय डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। क्योंकि सर तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजों के प्रिंसिपल रहे हैं यहाँ, और इनके पास रिएम्बर्समेंट के लिए कई सीजीएचएस, म्युनिसिपल, ऐसे कई हैं जो गवर्नमेंट रिएम्बर्स करती है आयुर्वेद की ड्रग को। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन या उसका नहीं है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद की ड्रग का रिएम्बर्समेंट मैं आदरणीय दिनेश्वर प्रसाद जी को सादर आमंत्रित करूं। नमस्कार सर, और लोगों को धन्यवाद भी जो है सर। इसमें एक्चुअल अभी भी प्रॉब्लम है जो हमारे वक्ताओं ने बताया कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है, ये एक्चुअल जो डॉक्टर को पता नहीं है हम लोगों को जो है कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में जो है
जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं क्या क्या रखी हैं, जो उन्होंने एक्चुअल फैक्ट बताया कि साहब जो भी पॉलिसी होता है वो पॉलिसी को कोई पढ़ता नहीं है। तो डॉक्टर एक्चुअल बहुत स्टडी नहीं करते हैं, जो जाते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव या इंश्योरेंस के लोग जो है वो बताते हैं, वो करा लेते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट एक्चुअल अभी नहीं मिल पा रहा है आयुष के लोगों को। तो ये एक एक्चुअल डिटेल ये होना चाहिए कि साहब जो है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है में क्या क्या इंक्लूड किया है, किए हैं वो ये सब कंपनियां जो हैं, उन कंपनियों के तरफ से भी टाइम टू टाइम जो है कुछ जो है मैंने पेपर में एडवर्टाइज करके या जो है आपको ये वेबसाइट वगैरह पर दे करके कि साहब क्या क्या हमारा इसमें फैसिलिटी इंक्लूड करता है, अभी हमारे आयुष के डॉक्टरों को पता ही नहीं है। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन अभी हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है जो एलोपैथ में है उस टाइप से। तो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पर क्या हमको फैसिलिटीज माने हमारे पेशेंट को मिल सकता है या हमको मिल सकता है, मान लीजिए कि लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो इसके बारे में एक अवेयरनेस जो है आप चूंकि लीगल भी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएं, तो इसमें लीगल एरर भी है और प्लस इंश्योरेंस का भी जो है कि इंश्योरेंस करने के लिए तो कर देते हैं, लेकिन जब भी बाद में क्लेम जाता है, हम तो नहीं कभी कराए हैं क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट से कभी जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने कई बार कराया इंश्योरेंस जो है, लेकिन उसका बेनिफिट ना उनको पेशेंट को मिला ना उनको मिला। तो इसमें एक जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन लोगों के साथ बैठ करके अगर हम लोग एक डिस्कशन करें, वेबिनार करें या सेमिनार करें या टेबल टॉक करें, तो हम समझते हैं कि ये काफी बेनिफिटेड हो सकता है इंश्योरेंस वालों के लोगों को भी और हमारे डॉक्टर के लोगों को भी जो है। दूसरी ये बात होती है कि जो है जो हम दवाई मान लीजिए कि ओपीडी में या हम ऐसे प्रैक्टिशनर एज ए प्रिस्क्राइब्ड किए, तो प्रिस्क्राइब्ड करने में जो मान लीजिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो उसमें जो है बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने ये कि साहब इस ड्रग को देंगे, इस ड्रग को नहीं देंगे, इस कंपनी को देंगे, इस कंपनी को नहीं देंगे। तो प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो स्पेसिफिक जो है मेडिसिन की जानकारी रखे, स्पेसिफिक कंपनी की जानकारी रखे, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो उसमें इन द होल जो है एक होना चाहिए कि नहीं साहब जो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अगर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है और ऑथेंटिक है, उसके लिए कहीं मान लीजिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो किसी एक्सपर्ट उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर का एक पैनल रखा जाए जिससे कि साहब ये जेन्युइन मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं ये किया जा सकता है। लेकिन हमारी इंश्योरेंस कंपनियां जो है उस टाइप का केयर अभी नहीं ले पा रही हैं। तो ये जो भी हमारे लोग आए हैं इसमें इंश्योरेंस से ओरिएंटेड लोग हैं, तो इन लोगों के साथ बैठ करके इसमें हम लोगों को एक डिस्कशन करना चाहिए। इससे एक्चुअल हमारा आयुष जो है प्रभावित हो रहा है। बहुत लोग चाहते हैं ट्रीटमेंट कराना, लेकिन वो जानते हैं कि साहब इसका क्लेम हमको नहीं मिलेगा तो वो नहीं करा पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है हमने फेस जो है हम लोग रियम्बर्स के लिए भी कि बहुत सारी हमारी हॉस्पिटल में आईपीडी ओपीडी में जो प्रिस्क्राइब होता था उसमें भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां कटौती कर लेती थी कि साहब इसका नहीं देंगे, इसका नहीं देंगे। तो चूंकि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस मेंशन है नहीं और हम लोगों का विधा बहुत माने ब्रॉड है, माने रुपए की साथ नहीं है कि सर्जरी है तो ये इतना ही सर्जरी कर लिए। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। पवन जी आप थैंक म्यूट यू है। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं पवन अब जी रेडमी नोट 9 प्रो के नाम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यदि आप कंफर्टेबल है तो। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर भुवनेश हूँ सर। नमस्कार डॉक्टर भुवनेश, तो स्वागत है चर्चा में। डॉक्टर पवन जी मैं ये चाहता हूं कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर दिनेश्वर जी ने, कि हमें आयुष के सभी विभागों से, जैसे यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, सभी का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर एक अलग अलग वेबिनार होना चाहिए। और उसमें हो सके तो उसमें कुछ हम आयुष के लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों को भी इनवाइट करें जिसमें ये डिस्कशन हो, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल खाली है अभी, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जब तक स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने में आगे नहीं आएंगी। जो एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस है उसका क्लेम जो है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है, तो सबका स्कोप अलग अलग है। तो इसमें
4-5 सेमिनार आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन 10-15 दिन के टाइम पे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी से और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया जाए और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हो सकती है, जो NCISM के लोगों को भी बुलाया जाए, जिसमें हम जो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो की जाए उसमें। धन्यवाद सर। एंड डॉक्टर अग्निहोत्री जी, नमस्कार। मंदार जी, आप कुछ बोलेंगे इस पॉइंट पे? डॉक्टर मंदार रनाडे जी, इफ यू आर कंफर्टेबल। मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर को प्रणाम करता हूँ। रनाडे जी, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को नमस्कार। हाँ, ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। प्लीज यस प्लीज यस। कंटिन्यू रनाडे नहीं, जी। बस मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये सिलेक्ट किया है, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। और अभी भी मैंने जैसे बोला कि वी हैव गॉट अ प्लूरलिटी ऑफ लीगल सिस्टम। हर स्टेट में सब कुछ अलग है, और एक हमारे पास वन नेशन वन एक्ट नहीं है एज पर एज मेडिकल प्रैक्टिस कंसर्न। वन नेशन वन फ्लैग है, बाकी सब है, लेकिन ये नहीं है। तो इस सेक्टर में हमें काम करना चाहिए। और हमारे आयुष सेक्रेटरी जो अभी है, जो पहले पहले जमाने में IAS ऑफिसर होते थे, तो उनको कुछ इसमें इतना रुचि भी नहीं रहता था, समझते भी नहीं थे। लेकिन अभी के जो है डॉक्टर कोटेचा, वो अपने ही डॉक्टर है, पद्मश्री है, पंचकर्म कंसल्टेंट है, और जामनगर के वो डीन रहे। तो उनको ये सब बारे में बहुत अच्छी समझ है। तो आपके माध्यम से यदि उनको जोड़ा जाए या डॉक्टर मनोज नेस्ली को जोड़ा जाए, तो बहुत ही अच्छा इसके ऊपर ये हो सकता है। मतलब दे कैन थ्रो अ गुड लाइट ऑन दैट, एंड दे आर द पॉलिसी मेकर्स। देयरफॉर इफ हमारी सब बातें उनके तरफ पहुंच गई, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ एक्शन हो सकती है, और स्कोप ऑफ प्रैक्टिस भी हो सकता है। और जो डिस्क्रिमिनेटी अभी सर ने बोला, कोई सर बोल रहे थे अभी, शायद एक एक प्रिंसिपल थे सर, वो बोल रहे थे, उनका नाम मैं भूल गया। तो वही जो उन्होंने बोला कि इतना देते हैं, इतना इंश्योरेंस कंपनी ये कंपनी का नहीं देंगे, ये कट करेंगे, वो कट करेंगे, उसी बारे में तो अभी मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो उसका फायदा लेके हम ये इंश्योरेंस कंपनी जो ऐसा इंजस्टिस हमारे ऊपर कर रही है, उसके लिए भी हम कुछ रोक लगा सकते हैं। तो जल्दी ही इसके ऊपर एक वेबिनार हो, वर्कशॉप हो, नेशनल लेवल का कुछ हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स ज्वाइन होना चाहिए, और अपनी मांग आयुष इधर सेक्रेटरी और मिनिस्टर इनके तरफ हमने रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, बहुत सही बोल रहे हैं। हम आप दोनों से बात करके, हरीश जी से बात करके, किन किन को बुलाना है उस वेबिनार में, ये फाइनल करके एक अच्छी सी वेबिनार रखते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग हम हर ऑफिशियल के पास, हर मिनिस्टर के पास भेजेंगे विद रिक्वेस्ट टू रिव्यू। बहुत अच्छा वेबिनार रहा। मैं सर, आप मैं लोगों इसमें आपको हाँ एक और रितेश, सजेशन देना चाहूंगा। डॉक्टर हाँ मंदार और जी, डॉक्टर हरीश सर ने जो कहा, आप इसमें IRDA के पदाधिकारी को भी बुलाइए। हम मेरे को जो नाम और फोन नंबर दे देंगे, जी, आइडिया लगा के आप लोग, उसका हम रीजन बुला क्या है लेंगे। सर? IRDA इज सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके अंडर में पूरे हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनी और मेडिक्लेम विभाग जो है वो काम करता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो वो एक रेगुलेशन हाईएस्ट है। तो उसके अगर कोई पदाधिकारी आएंगे और उन तक ये बातें पहुंचेगी ना, डेफिनेटली इट विल गिव अ गुड हेल्प एंड बूस्ट टू ऑल द आयुष प्रैक्टिशनर्स एंड आयुष ट्रीटिंग पेशेंट्स। नहीं, ये एकदम वैलिड पॉइंट है, वो मेरे से रह गया। बिकॉज अल्टीमेटली IRDA को यदि समझा कि हमारी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है, तो ही इस इंश्योरेंस कंपनी और TPA को हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी IRDA ही हमारे ISM के रूल्स एंड रेगुलेशन समझती नहीं है, और उनको ही क्वैक्स बोलती है, तो फिर क्या आगे हो सकता है? तो इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। वी नहीं शुड राइट नहीं टू नहीं IRDA सर, एंड आस्क देम टू सॉरी टू सेंड वन इंटरव्यू सर, मैं रिप्रेजेंटेटिव। इंटरव्यू करना चाहूंगा इसमें। IRDA ने कभी भी ISM के प्रैक्टिशनर को क्वैक्स नहीं बोला है सर। नहीं, क्वैक नहीं बोला है, रिटर्न में नहीं बोला राधा है। राधा राधा नहीं नहीं राधा नहीं नहीं राधा सर, नहीं सर, IRDA ने, नहीं सर, सर सुने नहीं। सुने सुने, एक को IRDA बोलने ने ही दीजिए, बोला है। एक को बोलने दीजिए, फिर अपन बात करें। कोई भी एक यस, बोले, तो यदि वो बोल रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं डॉक्टर भुवनेश। सर मैं ये बोल रहा था, IRDA ने कभी भी ISM के प्रैक्टिशनर को क्वैक्स नहीं बोला है। इशू वहां पे ये आता है कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग
हेल्थ पॉलिसीज है, कहीं पे एलोपैथी अलाउड होती, कहीं पे अलाउड नहीं होती, तो वहां वो क्रॉसपैथी के कारण इश्यूज आते हैं, ऐसा नहीं आता। रादर IRDA ने तो अब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सबको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आयुष को इंक्लूड करो। एंड इंडिया में मेरे ख्याल से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सबके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ % आयुष का इंक्लूड हुआ है लास्ट 3 इयर्स के अंदर के विद इन द 3 इयर्स जो हुआ है ये। हाँ, ये बात अलग है कि वो कुछ परसेंटेज होता है, कहीं तो 5 to 10% है किसी किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन का एक इशू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि IRDA इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ आयुष, IRDA इज डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ आयुष, ऐसी बात नहीं है। तो सर मैं और ये भी कहना चाहता हूँ, क्वैक क्वैक का सब्जेक्ट ऐसा है कि अभी ये 2 साल में जो मीटिंग की मैंने बात की तिरुवनंतपुरम में हुई स्टेक होल्डर्स की, उसके बाद में आयुष ट्रीटमेंट एंटरटेन होना शुरू हो गया। उसके पहले ऐसे बहुत सारे मैं दाखले दे सकता हूँ, मेरे पास केसेस है, कंज्यूमर के केसेस हमने डाले हुए हैं, जहां पे IRDA ने ये बोला है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसका मतलब क्या हुआ? क्वैक ही हो गया, दूसरा कुछ मतलब। इट्स अ शुगर कोटेड वर्ड ना। यू आर नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अकॉर्डिंग टू, दे ओनली कंसिडर एज दोज हु आर रजिस्टर्ड अंडर नेशनल मेडिकल काउंसिल एज रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। वो अब सर वो IRDA ने नहीं हमारे बोला दबाव के होगा मेरे बाद साथ वो। जितना कोविड में हम लोगों ने काम किया है, जितना प्रधानमंत्री जी ने हमारी अप्रिसिएशन किया है, उसके बाद ये सब बदला है। और वहां से दबाव आया है IT सेक्टर से और लोगों से कि हमें आयुष ट्रीटमेंट चाहिए। उसके बाद में ये सिनारियो बदला है, नहीं तो IRDA वाज नेवर विथ अस। IRDA, इंडियन आर्मी, आई एम टॉकिंग विद दिस ऑन रिकॉर्ड। इंडियन आर्मी हमें रिकॉग्नाइज नहीं करती, हमें इंडियन एयरलाइंस नहीं रिकॉग्नाइज करती, इंडिगो एयरलाइंस रिकॉग्नाइज करती। डॉक्टर मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली MBBS, एंड वी डोंट फाइट। ECHS के इवन पैनल पे भी है SBI, आयुष इवन हॉस्पिटल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यदि लोन देना है तो डॉक्टर्स में आयुष डॉक्टर को लोन नहीं देती, उस सुविधा का फायदा नहीं देती वो जो MBBS को देना है। डिस्क्रिमिनेशन एवरी लेवल पे हम फाइट नहीं करते सर, फाइट नहीं बहुत करते। और अच्छा। अब तक ये ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब सिनारियो चेंज होने लगा मैं है। अगली ऐसी वेबिनार बात है। में स्विच करना चाहता हूँ। अभी मेरी 2 वेबिनार बाकी है, तो मैं इसको ठीक है, अगली सॉरी वेबिनार सर, में सॉरी सर। कंक्लूजन दूंगा। अभी 2 वेबिनार बाकी हैं। एक और चाइनीज निमोनिया आ रहा है, तो चाइनीज निमोनिया के ऊपर पहली वेबिनार हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर मैं शुरू कर दूंगा। हमारे दोनों वक्ता आ चुके हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा ब्रीफ में हम लोग चर्चा करें। और अगली वेबिनार आप तीनों से पूछ के मैं रख लूंगा, जिस दिन कहें, परसों कहें परसों, लेकिन वो उसमें IRDA का एक आदमी तो होना चाहिए कोई। ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग भी ट्राई करें, अपन डेट फाइनल कर लेते हैं। आप बताएं किसको बुलाना है, उनसे बुला के उनको सुनाया जाएगा, अच्छी तरह मैं सुनाया दे देता हूँ जाएगा सर कि आपको, हम। IRDA के सर कंसर्न अथॉरिटीज के कॉन्टेक्ट आपको दे दूंगा मैं सर। बहुत अरे अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूं, आई पवन जी विल इसमें मैं रिक्वेस्ट सर एवरीवन। लास्ट पवन जी 17 मैं ईयर से इंश्योरेंस प्लीज जी, हाँ फील्ड में ही बोल। हूँ सर। पवन जी मैं हाँ एक बोलिए। पवन जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए। हाँ जो जो आजकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए इंडिया में, वो NCISM है। तो जो पॉलिसीज फ्रेम करती है, तो जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है वो NCISM के प्रेसिडेंट या जो भी उनके आ अधिकारी, जाएंगे डॉक्टर राकेश शर्मा आ जाएंगे। हाँ उनको बुलाइए आप। आ जाएंगे, लेकिन वो हाँ NCISM तो ठीक है, वो एग्जीक्यूट कहाँ करती है? वो तो अभी बेचारा नेशनल कौन सा, ठीक ही बोले तो राकेश शर्मा का तो बॉडी वो है, बोर्ड ऑफ एथिक्स। नहीं नहीं, हाँ वही स्कोप ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने बनाना है, हाँ, उनके अधिकार में आता है। क्या बात है, क्या बात। अरे राकेश शर्मा जी कल मेरे साथ थे यहाँ, अभी 3 दिन पहले दिल्ली में मेरे साथ थे। वो आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, उनको हम ले आएंगे। तो इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत एक सीरियस मैटर है। हाँ स्कोप तो ऑफ बनाइए, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन बनाइए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग इस विषय में थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए, उनके सामने हम यही पॉइंट उठाएंगे। थैंक यू हाँ सर। भुवनेश जी, आप कुछ बोल रहे थे, डॉक्टर सर मैं भुवनेश। कह रहा था IRDA के जो सर कॉन्टेक्ट पर्सन चाहिए मैं उनकी डिटेल्स आपको भिजवा दूंगा। डॉक्टर थैंक यू, हिमांशु थैंक शेखर यू। तिवारी को दे दूंगा, मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ सर।
अरे बहुत अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा। और आप भी अपना फोन नंबर, मेरा फोन नंबर लेके मुझे कर रख दीजिएगा, तो डेली हम लोग जी कांटेक्ट में रहें। जी सर। थैंक यू। मैं अब अग्निहोत्री जी से इस वेबिनार को कंक्लूड करने की प्रार्थना करता हूँ। आपके यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, अग्निहोत्री सर। नमस्कार, धन्यवाद प्रोफेसर पंच शर्मा जी। हमारी अपोलॉजी है कि हम थोड़ा लेट से जुड़ पाए, थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन थे और सिग्नल प्रॉब्लम हो गई थी। अभी हम जो सुन पाए हैं हमारी स्पेशली इंश्योरेंस के मामले में और क्लेम्स के मामले में, तो भारत में 2-3 स्लोगन बहुत जोर शोर से आजकल चल रहे हैं। पहले तो कहते थे वन अर्थ वन हेल्थ, इस तरीके से अगर हम चर्चा आगे बढ़ाए तो वन नेशन वन हेल्थ और वन इंश्योरेंस। अगर वन इंश्योरेंस की बात आ जाए उसमें ठीक है, जनरल और मेडिकल को अलग अलग कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को और मेडिकल को, क्योंकि टाटा AIA हो गया, हमारा बजाज अलायंस हो गया, LIC हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, HDFC वाले हो गए, हमारे ICICI प्रूडेंशियल वाले हो गए। इतनी सारी कंपनियां और ये मनमाफिक तरीके से अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और कोई कुछ पार्ट का क्लेम देते हैं, कोई कुछ क्लेम पर ऑब्जेक्शन लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। IRDA की जो हमारी है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और लखनऊ में एक और